Hello students. Today we will discuss about Newton's third law of motion. Okay. According to this law, every action there is an equal and opposite reaction. Okay. Every action there is an equal and opposite reactions. Okay. So here two forces. First one action and other reactions. Okay. Suppose F1 force act on a body. So one more force F2 in opposite direction. So for we have F1 equal to minus F2. So this is the formula for Newton's third law of motions. F1 equal to minus F2. Here negative sign shows that the direction of force F2 is opposite to F1. Now student, in your book, suppose 9.5 third law of motion. The first two laws of motion tells us how an applied force changes the motions and provide us with a method of determining the force. Okay, हम एक बार फिर से आपको रिकॉल कर लेते हैं फर्स्ट लॉ. Okay, according to first law, which is also known as law of inertia, and according to this, the inability of an object to change its position by its own in the absence of an external force. That means in first law, force F equal to 0, and the second law, according to second law, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on it and in the direction of force. Okay, and with the help of second law we can measure the value of force. And now in third law. Okay, so the third law of motion states that when one object exerts a force on another object, so the second object instantly exerts a force back on the first. So these two forces are always equal in magnitude but opposite in directions. So you have to remember this thing, that these two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. One more thing, these two forces act on different bodies. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि if according to Newton's third law, if action and reaction both are equal, then why the moment is produced in an object. कि जब एक बॉडी पर दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट लिख रहे हैं तो उसमें मूवमेंट क्यों हो रहा है. ओके, तो क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन ये रहेगा बिकॉज दिस फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज. जैसे अगर हम वॉल पर फोर्स अप्लाई करें तो वॉल हम पे अप्लाई कर रही है. आप ट्रक को पुश कर रहे हो तो ट्रक हम पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ट्रक फर्स्ट बॉडी हो गई और हम सेकंड बॉडी हो गए, मतलब बोथ आर द डिफरेंट बॉडी थिंग्स. ओके, और एक चीज़ और याद रखें, फोर्सेज आर ऑलवेज इन पेयर. फोर्सेस हमेशा पेयर में ही होंगे. अब यहाँ पर दिस फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है लाइन है आपकी कि दिस two forces are always equal in magnitude but opposite in direction, and these forces act on different objects and never on the same object. In the game of football, sometimes we, while looking at a football and trying to kick it with a greater force, collide with a player of the opposite team. Both feel hurt because each applies a force to the other. In other words, there is a pair of forces and not just one force. इसे भी आप अंडरलाइन करके रखिएगा, देयर इज ए पेयर ऑफ फोर्सेस एट नॉट जस्ट वन फोर्स. कभी भी सिंगल फोर्स कहीं अप्लाई नहीं होता, हमेशा पेयर ऑफ फोर्सेस ही होते हैं. जब हम मूव करते हैं तो हम आगे की ओर मूव करते हैं तो उस केस में वो जो फोर्स लगता है किसके अपोजिट हम फोर्स कर रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस. ओके, सो द टू अपोजिंग फोर्सेस आर ऑल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. Now in second paragraph, let's consider two spring balances connected together as shown in the figure. Suppose these two spring A and B are like this. One action and reaction forces are equal and opposite. If we pull, then the same force applied by B. Okay, so here the fixed ends of balance B is attached with a rigid support like a wall, and when a force is applied though the free end of a spring balance A, it is observed that both the spring balance show the same reading on their scale. It means that the force exerted by spring balance A on the balance B is equal but opposite in direction to the force exerted by the balance B on the balance A.
Okay, so any of these two forces can be called as action and other as reaction. किसी को भी हम एक को action कहेंगे तो second reaction हो जाएगा. And this gives us an alternative statement of the third law of motion, that is, to every action there is an equal and opposite reaction, and this is the required statement of Newton's third law. Every action there is an equal and opposite reaction. However, it must be remembered that the action and reaction always act on two different objects simultaneously. इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, नॉट द सेम. Okay, so here one more example. Suppose you are standing at rest and intend to start walking on the road. You must accelerate, and this require a force in accordance with the second law of motion. है ना, कि अगर हमें मूवमेंट करना है, चलना है, तो हमें कुछ एफर्ट्स लगाना पड़ते हैं. किसके अगेंस्ट एफर्ट लगा रहे हैं हम? जो फोर्स एक्सलेट करने के लिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट. तो वो एक फोर्स हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और एक हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. और हम मूवमेंट तभी कर पाएंगे जब हम उससे ग्रेटर फोर्स अप्लाई कर पाएंगे. ओके, विच इज दिस फोर्स? तो इट इज द मस्कुलर इफेक्ट यू एक्सर्ट ऑन द रोड. इज इट इन द डायरेक्शन व्हेन इंटेंड टू मूव? नो, यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड एंड द रोड एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन योर फीट टू मेक यू मूव फॉरवर्ड. हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और रोड हमारे फॉरवर्ड, जिससे हम आगे की तरफ मूव करते हैं. So it is important to note that even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not produce accelerations of equal magnitude. Okay, this is because each force acts on a different object that may have different masses. Okay, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि हम देख रहे हैं कि एक्शन और रिएक्शन बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन अपोजिट. दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में. फिर भी मूवमेंट क्यों हो रहा है? हम जरूरी नहीं है कि उनके मैग्नीट्यूड सेम हो, उनसे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. हमने न्यूटन सेकंड लॉ से देखा है F इक्वल टू एम ए. सो A इक्वल टू F अपॉन एम. डेट मीन्स एक्सेलरेशन उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जिसका मास कम है. ओके, तो डिपेंड्स करेगा, जिस बॉडी का मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा. अगर हम अर्थ पर फोर्स अप्लाई करें तो हम आगे की ओर जा रहे हैं, न कि अर्थ जा रही है. क्यों? क्योंकि हमारा मास कम है, इसलिए हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं ना, इन कंपेयर टू अर्थ. ओके, हाँ, अगर आप किसी लाइटर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा? वो आगे मूव कर जाएगा, हम वहीं रहेंगे. सो एक्सेलरेशन फोर्सेस सेम होने पर जरूरी नहीं है कि सेम प्रोड्यूस हो. वो तभी हो पाएगा जब दोनों के मासेस सेम होंगे. एक वन मोर एग्जांपल ऑफ गन, कि व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन. सो दिस रिजल्ट इन द रिकॉइल ऑफ द गन. इसे हम रिकॉइल ऑफ द गन कहते हैं कि जब हम गन से फायर करते हैं तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बट वो बुलेट भी उतना ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी, तो हम पीछे की ओर जाते हैं. बट हम उतना पीछे नहीं जाते हैं जितना कि बुलेट जितनी स्पीड से आगे जा रही है. क्यों? क्योंकि बुलेट का मास एज कम्पेयर टू गन कम है, बहुत कम रहता है. ठीक है, इसलिए और हमारा मास, गन का मास ज़्यादा है, तो उतना एक्सलेट नहीं होगी जितनी की बुलेट होगी. तो इसे हम कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन. सिंस द गन हैज मच ग्रेटर मास देन द बुलेट, सो द एक्सेलरेशन ऑफ द गन इज मच लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट. सो द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन कैन ऑल्सो बी इलस्ट्रेटेड व्हेन अ सेलर जम्प्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट. एज द सेलर जम्प्स फॉरवर्ड द फोर्स ऑन द बोट मूव इट बैकवर्ड. ये देखिए एक्टिविटी बोट वाली, ठीक है, कि जब वो आगे जंप करेगा तो बोट उतना ही फोर्स पीछे लग रहा है. बट वो एक चीज़ ध्यान रखेगा कि फोर्सेस तो इक्वल लगेंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि जितना एक ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही वो बैकवर्ड जाए. वो डिपेंड किस पर करेगा? उनके मासेस पर. अगर जिसका मास कम रहेगा उसका मूवमेंट उतना ही स्पीड से उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही एक्सेलरेशन उसमें ज़्यादा होगा. किसमें? जिसका मास कम है. अगर ये पर्सन कहाँ जंप कर रहा है? बोट से इस पर, तो पर्सन का मास कम है और बोट का मास अगर ज़्यादा है तो बोट उतना पीछे नहीं जाएगी जितना कि पर्सन आगे की ओर जा रहा है. ओके, और अगर बोट का मास बहुत ही ज़्यादा हेवी है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जैसे अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, जब हम उसको पुश करते हैं, हम चलते हैं, तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, बट उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता. हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, उसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि हमारा मास उसके कंपेरिजन में बहुत ही
कम है, नेग्लिजिबल ही है। वन मोर एक्टिविटी है 9.4, request two children to stand on two separate cards. देखो according to figure, give them a bag full of sand or some other heavy objects. Ask them to play a game of catch with the bag. Okay. Now, does each of them experience an instantaneous force as a result of throwing the sand bag? You can paint a white line on card wheels to observe the motions of the two cards when the children show the bags towards each other. कि यहाँ पर भी वही डिपेंड करेगा किसका मास ग्रेटर है, जिसका मास ग्रेटर होगा उसमें चेंजेस कम होंगे. Okay. So this is your Newton's third law of motions. So there are three laws of motions. Newton's first law of motions, where force equals to 0. In Newton's second law of motions, F equals to del P upon del T, the rate of change in momentum, or F equals to ma, which measure the force. And Newton's third law. So this law, every action reaction equal and opposite reaction, action and reaction always equal and opposite, and both action and reaction always are act on different bodies, not same. Okay. And if action and reaction are equal, but it is not necessary that the acceleration be also equal. It depends on the mass of body. जिस बॉडी का मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा. ओके. जैसे एक और एग्जांपल देखा था न्यूटन्स ने कि एप्पल नीचे की ओर आ रहा है. क्यों? क्योंकि अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है. अब इसका अपोजिट भी होना चाहिए, क्योंकि एप्पल भी उस पर अर्थ पर उतना ही फोर्स लगा रहा है. अभी हमने कहा ना इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक. तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एप्पल भी अर्थ पर उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना अर्थ एप्पल पर लगा रही है. बट एप्पल में एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उसका मास अर्थ के कंपेरिजन में बहुत कम है. डेट्स वाई एप्पल इज फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ. ओके. सो दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ. Student, now you have to read out this part, conservation of momentum. एंड सैटरडे आपका टेस्ट रहेगा इसके प्रीवियस चैप्टर का, मोशन का. ओके. एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट रहेगा, सभी को अटेम्प्ट करना है. ऑल यू टू अटेम्प्ट द टेस्ट, क्योंकि ये मार्क्स आपके टेस्ट के ऐड होंगे असेसमेंट के. So please read this chapter and complete your copies up to chapter 1st.